आंसर क्या आएगा ये, सो बिकम dy बाय dx इज इक्वल टू u इंटू v. व्हाट इज u? x स्क्वायर v sin x into d by dx of log x plus uw x square into log x into d by dx of sin x plus vw sin x into log x into d by dx of x square. सही है. अब आपको फॉर्मूला पता है डेरिवेटिव ऑफ log x. What is the formula for derivative of log x? 1 upon x. What is the formula of derivative of sin x? Only cos x. Cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x है and derivative of x square is 2x. Any doubt so far? तो क्या बनेगा ये? So become x square into sin x into 1 upon x plus x square into log x into cos x plus sin x into log x into 2x. Well, इसमें से एक x cancel हो जाएगा and that's the answer. So what is dy by dx is equal to x square sin x plus x square log x into cos x plus 2x into log x into sin x. Well, that's the answer. Is this clear? Okay. यहां पर नई बात क्या थी? UVW. UVW was new thing for you all. अगला क्वेश्चन, y is equal to 1 upon x root x minus 3x square into log x. अब पहले तो x root x क्या होगा? x raised to 1 into x raised to half, that is x raised to 3 by 2, मतलब x raised to minus 3 by 2 in the numerator. Yes or no? तो ये बनेगा x raised to minus 3 by 2 minus 3x square into log x. I will treat this as u and I'll treat this as v. Is that okay? And then d by dx of u into v. U dv by dx plus v du by dx. Apply and tell me. Come on. So what will be dy by dx? U मतलब this bracket is x raised to minus 3 by 2 minus 3x square into d by dx of v, that is log x, plus v into d by dx of u, x raised to minus 3 by 2 minus 3x square. Any doubts about this? बताइए कैसे करना है. So this bracket will be as is. d by dx of log x तो अपने को पता है, इसका डेरिवेटिव जब लिया जाएगा तो इस तरह से अप्लाई होगा. यस और नो? बताइए कैसे करेंगे. तो दिस विल बिकम x raised to minus 3 by 2 minus 3x square d by dx of log x plus log x into. अब देखिए जब मैं इसे अप्लाई करूंगा तो यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? d by dx of x raised to n. और यहां पे क्या होगा? 3 कांस्टेंट. मन ही मन में उसको बाहर ही रख दो, उसके लिए अलग स्टेप नहीं लिखेंगे अभी हम. एंड देन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव. तो क्या आप लोग मुझे ये डायरेक्ट आंसर कर पाओगे? d by dx of x raised to n minus 3 by 2 x raised to n minus 1 minus 3 by 2 minus 1 is the, हाँ वो अभी नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे. ये वाला समझ में आ गया? माइनस 3 कांस्टेंट बाहर मतलब यहीं पे इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 2 x raised to
2 minus 1 1. Is that clear? Is that okay? Is that fine? बस अभी इसको सिंप्लीफाई करना है and that would be the answer. So what am I? अब ये x को अंदर भेज दीजिएगा. ये x जब इधर जाएगा तो x रेज टू माइनस 3/2 अपॉन x, तो वो ऊपर चला जाएगा माइनस 3/2 माइनस 1, मतलब क्या बन जाएगा जी? x रेज टू माइनस 5/2. अंडरस्टूड? Is that a too much of a shortcut? Or are you able to understand that? समझ में आ रहा है? जबकि ये x यहाँ के x के साथ कैंसिल होगा और वहां पर सिर्फ 3x बनेगा. हेलो, इज दिस फाइन? प्लस लॉग x इनटू क्या होगा यहाँ पे बताइए? करेक्ट, माइनस 3/2 x रेज टू माइनस 5/2 minus 6x. Well, that's the answer. Is this okay? Is that fine? Next. U by V. अब वो वक्त आ गया U by V अप्लाई करने का. V du by dx minus U dv by dx अपॉन V स्क्वायर. समझे? तो बताइए यहाँ पे क्या होगा? This U is this numerator. तो बताइए what will be dy by dx is equal to V. नहीं 1 अपॉन का है भैया, e raised to x आएगा, e raised to x into d by dx of x log x. सही है? माइनस बताइए u मतलब x log x into d by dx of v e raised to x. समझे? समझ में आ गया? डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर. वी स्क्वायर मतलब e रेज टू x का स्क्वायर. करेक्ट? अब देखिए यहां पे मुझे दोबारा u इंटू वी अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि मैं यहां ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा. समझ में आ गई बात? u इंटू वी, इसका डेरिवेटिव लिखने के लिए. तो चलिए क्या होगा बता दीजिएगा, बोलिए. e रेज टू x इंटू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज x. अब दिमाग में आप ये लिख सकते हो d by dx of log x. Can I write 1 upon x directly? क्या है 1 upon x? d by dx of log x. तो क्या अगर ऐसे लिखूंगा तो चलेगा? नहीं चलेगा. मैं लिख लेता हूं d by dx of log x प्लस v log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज 1. तो 1 लिखा तो चलेगा? शायद नहीं चलेगा. मैं लिखूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स. यहां पर मैंने सिर्फ ये वाला लिख दिया है, माइनस एक्स लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स इज ई रेज टू एक्स. इज दिस क्लियर टू यू ऑल? एनी डाउट्स अबाउट दैट? ये क्या मिल जाएगा? ये दिस विल बी अपॉन ई रेज टू एक्स का स्क्वायर. समझ में आया? Look at this carefully now. This e raised to x I can take common from here as well as here, और यहाँ के e raised to x के साथ कैंसिल हो जाएगा. समझ में आ रहा है? What do you get there? That will give me, बोलिए. So that is equal to, I'll take e. क्या मैं उसको कॉमन लेके मन ही मन में कैंसिल कर दूं? मन ही मन में कॉमन लेके मन ही मन में कैंसिल कर देता हूं. तो क्या बचेगा? दिस इज x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज 1 अपॉन x प्लस लॉग x इंटू 1 माइनस x लॉग x, क्योंकि e रेज टू x तो बाहर चला गया है, बाहर जाके. बराबर है क्या? Isn't it? So what do you get there? Divided by e raised to x, and this x gets cancelled.
So what will be the final answer there? 1 plus log x minus x log x, whole thing divided by e raised to x. Is that clear? Doubts there? अगला question. Very interesting question. Square root of 1 plus sin 2x upon 1 minus sin 2x. पहले तो square root को हटाना है, तो 1 के जगह पर लिखा cos square x plus sin square x. sin 2x के जगह पर लिखा 2 sin x cos x. Same thing in the denominator. This is looking like a square plus b square plus 2ab, and this is looking like a square plus b square minus 2ab. तो ये perfect square है a plus b का square, a minus b का square. Square root के कारण एक्चुअली ये बनेगा cos x plus sin x का स्क्वायर, cos x minus sin x का स्क्वायर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चला गया, तो दिस इज व्हाट वी गेट देयर. और इसे मैं u by v से सॉल्व करूंगा. अब इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? चलिए, तो अब मुझे यहाँ पर u by v अप्लाई करना है. क्वेश्चन क्या था? स्क्वायर रूट हटा दिया, यहां तक पहुंच गया. इज दैट फाइन? चलिए शुरू करते हैं. u by v अप्लाई करिएगा, मुझे बता दीजिएगा. सो व्हाट विल बी dy by dx इज इक्वल टू, बताइए. v that is cos x माइनस साइन. देखिए ब्रैकेट्स जो होते हैं मैथ्स में फ्री में मिलते हैं, तो बिल्कुल हिचकिचाना नहीं है यूज करते समय, बिंदास यूज करो. इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u cos x plus sin x माइनस u is the numerator, cos x plus sin x into d by dx of cos x minus sin x. Any doubts about that? Okay, whole thing divided by मुझे v square लिखना है, divided by v square. v square मतलब cos x minus sin x bracket square. Any doubts about that? is equal to, चलिए कैसे करेंगे बताइए. हाँ, न्यूमरेटर इज cos x माइनस साइन x. पहले यार अपने को डेरिवेटिव लेना पड़ेगा. अब डायरेक्ट डेरिवेटिव लिखने का यहाँ पे व्हाट इज, इंडिविजुअली पूछूंगा मैं एक एक करके. सो व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ cos x minus sin x. What I'll write here, minus sin x. And what is d by dx of sin x? सब लोग cos x है ना, प्लस सॉरी माइनस cos x प्लस sin x. आगे बताइए d by dx of cos x and d by minus d by dx of sin x. It's cos x. Whole thing divided by cos x minus sin x bracket square. अब गौर से देखिए, यहां से ये माइनस साइन यहां से अगर मैं कॉमन ले लूं, तो ये माइनस साइन बाहर आके ब्रैकेट के अंदर बनेगा sin x प्लस cos x. और ये माइनस साइन इधर अगर चला गया तो वो प्लस कर देगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? तो कुल मिलाकर क्या बन जाएगा, बोलिए. दिस विल बिकम, यस. अच्छा, बाय द वे ये वाला ब्रैकेट भी देखिए ना, cos x minus sin x, cos x minus sin x. So I think it's cos x minus sin x का स्क्वायर. हेलो, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा. एंड दिस इज cos x plus sin x, cos x plus sin x. करेक्ट ना? सो दिस इज cos x plus sin x ब्रैकेट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय cos x minus sin x ब्रैकेट स्क्वायर. एनी डाउट्स अबाउट दिस? समझ में आ गया? ब्रैकेट्स ओपन करना पड़ेगा जी. अलाउ टू ओपन द ब्रैकेट्स हियर. क्या मिलेगा बताइए? दिस इज cos square x प्लस sin square x माइनस 2 sin x cos x. a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर ना, प्लस दूसरे ब्रैकेट में आएगा वैसे ही cos square x प्लस sin square x प्लस 2 sin x cos x.
इज दैट क्लियर? डिनोमिनेटर में क्या आएगा जी? एज इट इज लिखते हैं उसको, cos x माइनस साइन एक्स ब्रैकेट स्क्वायर, समझे? सो व्हेन आई ओपन द ब्रैकेट नाउ, या फिर इसको भी हम ओपन कर लेते हैं, कोई बात नहीं, लेट्स ओपन दिस आल्सो. सो दिस इज cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x minus 2 sin x cos x. Is that clear? So what is this going to be? That is equal to, now this is, ये क्या बनेगा? 1 and this is also 1, और ये तो कैंसिल होगा जी, और ये भी 1 and this is going to be sin 2x. करेक्ट? तो कुल मिलाकर आएगा 1 plus 1 2, so this is 2 upon 1 minus sin 2x. This will be the final answer. Is this okay? Any doubts about that? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. या दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. x square plus 4 upon x log x plus 5. Again u by v, d by dx of u by v, v du by dx minus u dv by dx upon v square. Correct? Apply. So what will be dy by dx? क्या आएगा बताइए? यस, v x log x plus 5 into d by dx of u, that is x square plus 4 minus u x square plus 4 into d by dx of v x log x plus 5 upon v square x log x plus 5 bracket square. Any doubts about that? Is that clear? ठीक है, अप्लाई करना है. फार्मूला पेज सामने रखिए अपने एक एक करके. कहाँ कहाँ डेरिवेटिव है भाई? देखिए यहां है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन, जो क्या आता है एन एक्स रेस टू एन माइनस 1. कैन आई राइट इट डायरेक्टली? 2 एक्स रेस टू 1. फिर यहां पर आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ अ कॉन्स्टेंट. लास्ट 13th फॉर्मूला 0 होता है. होता है क्या 0? 13th फॉर्मूला. ओके, और यहां पर जब हम अप्लाई करेंगे तो आई हैव टू यूज u इंटू वी, और ये भी कांस्टेंट है. एनी डाउट्स? लेट्स अप्लाई. अप्लाई करते हैं. क्या बन जाएगा? देयरफॉर dy by dx इज इक्वल टू क्या आएगा? x log x plus 5 into d by dx of x square 2x plus 0 माइनस, ए 0 नहीं लिखेगा तो भी चलेगा. ओके, इनटू, हाँ अब u भी लिखना है मुझे, और जो मैं डायरेक्ट लिखना चाहता हूं, जो मैं, क्योंकि पूरा इतना बड़ा स्टेप उसके लिए नहीं. अभी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज. क्या है फर्स्ट फंक्शन? x into derivative of second d by dx of log x. What is d by dx of log x? 1 upon x. समझ में आ रहा है? ये मैं वहां पर डायरेक्ट लिखने जा रहा हूं, मैं d by dx of log x नहीं लिखूंगा. समझ में आया? So I'll write this as 1 upon x. Is that fine? Plus second function as it is log x. मामा तू जल्दबाजी नहीं करनी है. into d by dx of x. d by dx of x is 1. d by dx of x is 1, और फिर 5 का डेरिवेटिव वो 0 आएगा. इज दिस ब्रैकेट क्लियर टू एवरीबॉडी? uv के दो टर्म्स आते हैं जी. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट. ओके, प्लस 5 का डेरिवेटिव. यहां पर शॉर्टकट किया है, चलेगा? श्योर? अंडरस्टूड? ओके, डिवाइडेड बाय x log x प्लस 5 ब्रैकेट स्क्वायर. ये समझ में आ रहा है? देखिए यहां पर x और x गेट्स कैंसिल, तो ये क्या बन जाएगा? दिस विल बिकम
क्या आएगा ये? दिस इज 2x टाइम्स x log x प्लस 5 माइनस x स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस log x whole thing divided by x log x plus 5 bracket square. Is that okay? And that's the answer. इससे ज़्यादा हम कुछ इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो I'll leave it as it is. Is that okay? अगला क्वेश्चन, अगेन u by v. अगेन u by v क्या दिया है यहाँ पे? x tan x upon sec x plus tan x. What is the formula for d by dx of u by v? v du by dx minus u dv by dx upon v square. Upon v square. Don't forget that. Is that okay? अप्लाई करके मुझे बताइए क्या आएगा इसका? dy by dx is equal to, बोलिए बोलिए क्या आएगा बताइए? v sec x plus tan x into d by dx of x tan x, correct, minus u x tan x into d by dx of v, correct, sec x plus tan x whole thing divided by v square, है ना, whole thing divided by v square. ये रहा अपॉन v square. v square मतलब sec x plus tan x bracket square. Any doubts about that? समझ में आ गया? चलिए इसका डेरिवेटिव लेना है. अब डेरिवेटिव लेते समय याद रखिए, यहाँ पे देखिए, मुझे यहाँ पर जब मैं डेरिवेटिव लूंगा तो यहाँ पर u इंटू वी अप्लाई करना पड़ेगा, सही है, और फिर इसका डेरिवेटिव अलग से और इसका डेरिवेटिव अलग से. अंडरस्टूड? क्या मिलेगा बताइए? बोलिए. I have to write the derivatives of these now. Sec x plus tan x into u x d by dx of v, tan x का डेरिवेटिव sec square x, डायरेक्ट लिख रहा हूं, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज tan x इंटू डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट x का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ x 1. इस तरह से इस ब्रैकेट को मैंने डायरेक्ट लिखा, चलेगा? समझ में आ गया? ग्रेट. माइनस x tan x इंटू sec x का डेरिवेटिव sec x tan x प्लस tan x का डेरिवेटिव sec square x डिवाइडेड बाय sec x plus tan x bracket square. Any doubts about that? Is that clear? चलिए आगे बढ़ते हैं. सिंप्लीफाई करना है मुझे. अब गौर से देखिए, यहां से मैं, मेरे ख्याल से sec x I can take common from this bracket. Can I? इधर आएगा, करेक्ट ना? या तो फिर मैं ब्रैकेट को ओपन करना चाहूंगा, whatever. x कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा है ना? अच्छा, हो जाएगा, हो जाएगा. एक ब्रैकेट कैंसिल होगा पूरी तरह से. चलिए, तो क्या होगा देखते हैं. दिस विल बिकम sec x प्लस tan x इंटू, ये क्या आएगा, x sec square x प्लस tan x माइनस x sec x tan x. वहां से ब्रैकेट से मैंने sec x कॉमन निकाला, तो ब्रैकेट के अंदर आएगा tan x प्लस sec x and whole thing divided by
वी स्क्वायर ना, तो क्या है वो, दैट इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस टैन एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। तो गौर से देखिए यहाँ पे दिस ब्रैकेट and this bracket can be taken out common and can be cancelled with this. क्या ये समझ में आ गया? न्यूमरेटर से ये ब्रैकेट पूरा कॉमन आ सकता है, तो डिनोमिनेटर के साथ एक टर्म उड़ जाएगा, तो क्या बचेगा फिर वहां पे बताइए? व्हाट रिमेन्स ओवर देयर? लाउडर एंड क्लियर एंड एवरीबडी प्लीज। x sec square x plus tan x minus x sec x tan x, correct? Whole thing divided by sec x plus tan x. Is that clear to you all? Well, I'll keep this as the answer. Any doubts about this? This is very clear. समझ में आया सबको? Let's go for the next part of this chapter. If d by dx of f of x, d by dx of some function is equal to phi of x, phi मतलब phi, phi, how do we read this? Phi of x. d by dx of f of x is equal to phi of x. For example, d by dx of sin x is cos x. इस प्रोसेस को हम डेरिवेटिव कहते हैं या डिफरेंशिएशन कहते हैं? डेरिवेटिव, दोनों भी, डेरिवेटिव भी कहते हैं, डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। अब इस dx को मैं उधर भेज देता हूं, dx को इधर भेज देता हूं, ठीक है? तो वहां पर जो हम डिफाइन करने जा रहे हैं उसको कहते हैं, सो वी से इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू dx इज इक्वल टू sin x। इस प्रोसेस को इंटीग्रेशन कहते हैं। व्हाट डू वी कॉल दिस एज? इंटीग्रेशन। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट प्रोसेसेस है। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन इसी तरह से। सो अगर sin x का डेरिवेटिव cos x है तो cos x का इंटीग्रल sin x है। अच्छा, यहां पर dx का मतलब क्या होता है? वी आर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। यहां पर dx, ये dd कैंसिल होता है क्या कभी? नहीं, इट्स नॉट मल्टीप्लीकेशन, दिस इज द ऑपरेटर। तो ये dx अगर उधर भेजते हैं तो वी आर इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू dx। समझ में आ गई बात? x इज द वेरिएबल देयर। इज दैट अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? सो sin x का डेरिवेटिव अगर cos x है तो cos x का इंटीग्रेशन sin x होगा। समझे? इज दैट क्लियर? सो हाउ डू वी डिफाइन दिस इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन को डिफाइन कैसे करते हैं कि अगर f of x का डेरिवेटिव phi of x है तो phi of x का इंटीग्रेशन f of x होगा। therefore then integration of phi of x dx is equal to f of x. How do we read this? We read it as integral of or indefinite integral of or primitive of or antiderivative of phi of x with respect to x. It is also integration of phi of x with respect to x. ये सब उसके नाम है, इंटीग्रल, इंडेफिनाइट इंटीग्रल, ओके, प्रिमिटिव, एंटी डेरिवेटिव, ये सब उसके नाम है। एनी डाउट्स अबाउट दिस? समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया सबको? ओके, सो इंडेफिनाइट ई होना चाहिए, ठीक है? तो इसी तरह से कुछ हम फंक्शंस जो है उसके इंटीग्रेशंस लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है? कौन कौन से फंक्शंस? अपने को कुछ फंक्शंस पता है, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे लिखेंगे? इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज लॉग एक्स। समझे? व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ टैन एक्स? सेक स्क्वायर एक्स। तो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स? इज टैन एक्स। अच्छा, व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स? sec x tan x. What is integration of sec x tan x dx is equal to sec x. What is d by dx of e raised to x? E raised to x. So what is integration of e raised to x dx? E raised to x. What is d by dx of x? 1. So what is integration of 1 dx? x. समझ में आ रहा है? क्लियर? ठीक है?
अब हम देखेंगे रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। सेम जैसे हमने रूल्स ऑफ डेरिवेटिव्स देखे थे ना, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन देखे थे, उसी तरह से भेज दूंगा मैं आपको ये, फिलहाल ध्यान दो। रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन, इफ यू एंड वी आर इंटीग्रेबल फंक्शंस ऑफ एक्स, देन पहला रूल क्या है, अगर इधर प्लस है तो आप एक ही इंटीग्रल के अंदर है उसको सेपरेट कर सकते हो। तो u प्लस वी डी एक्स इज यू डी एक्स, इंटीग्रल यू डी एक्स प्लस इंटीग्रल वी डी एक्स। अगर माइनस है तो माइनस। टू बी के जैसे डेरिवेटिव में बाहर निकाल सकते थे वैसे इंटीग्रल में बाहर निकाल सकते हैं। इज दैट क्लियर? प्रोडक्ट रूल देखा था हमने डेरिवेटिव्स का, इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल होता है, लेकिन वो हम 12th स्टैंडर्ड में देखेंगे। कोशेंट रूल हमने देखा था, इसका कोशेंट रूल होता ही नहीं है। अगर कोई कोशेंट रूल इंटीग्रेशन के लिए यूज करता है तो उसको पीएचडी मिल जाएगा। पीएचडी कब मिलती है पता है आपको? जब भी कोई इन्वेंशन करता है। तो अभी तक इंटीग्रेशन के लिए u अपॉन वी नहीं आया है। समझ में आ गई बात? देयर इज नो u बाई वी फॉर इंटीग्रेशन। इज दैट क्लियर? तो आप लोग कई बार ऐसा होता है कि इंटीग्रेशन जैसे डेरिवेटिव का u बाई वी ऐसे नहीं, इसका नहीं होता है। ठीक है, चलिए। सो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। अब कुछ स्पेशल, सारे के सारे हमने डेरिवेटिव्स यहाँ पे लिए नहीं है। मैंने साइन एक्स लिया है, कॉस एक्स लिया है क्या? कॉस एक्स का इधर ले रहा हूं, क्यों? चेक करते हैं। देखिए, व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स? माइनस साइन एक्स, बराबर है क्या? तो अगर इसे मैं लिखता हूं ऐसे, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन एक्स डी एक्स? कॉस एक्स। ठीक है, इसके अंदर का जो माइनस साइन है मुझे वो यहां से हटाना है, वो उसको मैं बाहर निकाल सकता हूं, बिकॉज दिस इज माइनस वन ना, के को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो मैंने माइनस वन, यहां पर माइनस साइन बाहर निकाल सकता हूं, बराबर है? और यहां से मैं इसको इधर नीचे भेज सकता हूं, मतलब cos x, तो ये क्या बन जाएगा? अब अगर मैं 3 अपॉन माइनस 7 बोलता हूं तो वो माइनस 3/7 भी होता है और माइनस ऑफ 3/7 भी होता है। आई होप यू गेट दैट, करेक्ट ना? तो ये माइनस साइन आप इसको यहां से हटा के इसको लगा सकते हैं। सो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स? माइनस कॉस एक्स। इसी तरह से आप माइनस वाले सारी चीजें कर सकते हो, या कोई कांस्टेंट भी आप निकाल के उसको ट्रांसफर कर सकते हो। डिड यू अंडरस्टैंड दैट? तो ऐसा ही माइनस और एक है इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स। क्या डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स क्या है? डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट ऑफ एक्स, तो उसको आप इस तरह से कैसे करोगे? इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स, है ना? ये देखो आ गया, वही है। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स। और एक है ऐसा ही, डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स। वेरी गुड, देखो आ गया, वही है, सही है, बराबर है। एनी डाउट सो फार? इसमें किसी को कुछ डाउट्स है अभी तक? ठीक है, अब हम उसी तरह से कांस्टेंट की बात करेंगे। लेट वी टॉक अबाउट द कांस्टेंट, कि भाई व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स? क्या होता है? 1/2 रूट एक्स, है ना? तो ये कैसे बनेगा? यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 रूट एक्स डी एक्स इज रूट एक्स, लेकिन इसमें से कांस्टेंट को मुझे बाहर निकालना है। तो ये जो हाफ है इसे अगर मैं बाहर निकाल दूं तो वो क्या बन जाएगा? इधर हाफ बनेगा और ये 2 इसको जाके मल्टीप्लाई करेगा, यस और नो? तो फॉर्मूला क्या बनेगा? इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट एक्स डी एक्स टू रूट एक्स। समझ में आ गया? समझे? इज दैट क्लियर? इसी तरह से व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x? माइनस 1/x स्क्वायर। सो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर dx? अरे ये माइनस साइन इधर चला जाएगा ना,
तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx इज -1/x। समझे? इज दैट क्लियर? इज दिस ओके? श्योर? उसी तरह से आगे चलते हैं। d by dx ऑफ a raised to x क्या होता है? a raised to x into log a। लेकिन log a इज अ कांस्टेंट, उसको अगर मैं इधर ट्रांसफर कर दूं तो क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ a raised to x dx is equal to a raised to x upon log a। Did you understand this? Did you get that? Hello? अगला क्वेश्चन, अगला वाला फॉर्मूला, d by dx of x raised to n is n x raised to n minus 1। सही है? तो अब मुझे बताइए व्हाट इज d by dx ऑफ, अगर मैं यहां पर x raised to n plus 1 क्या होगा? n के जगह पर n plus 1 क्या होगा? इट विल बी n plus 1 x raised to n plus 1 minus 1। नहीं? बताइए, लिखाइए, क्या आएगा? दिस इज n plus 1 into x raised to n plus 1 minus 1। सही है? अरे डेरिवेटिव लिख रहा हूं यार मैं, कंफ्यूज। ये वाला फॉर्मूला सही है क्या? n x raised to n minus 1, ये नंबर इधर लेने का। अगर मैं आपको बोलूं कि व्हाट इज d by dx ऑफ x raised to 8 तो क्या बोलते हो आप लोग? आप बोलोगे 8 x raised to 7। करेक्ट? मतलब ये नंबर इधर ले लो और यहाँ का नंबर 1 से कम करो, तो n plus 1 अगर होगा तो क्या आएगा? टेक दिस नंबर हियर एंड x raised to n plus 1 minus 1। लेकिन प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, सो व्हाट यू गेट देयर अल्टीमेटली n plus 1 x raised to n। सही है? अब इसमें ये कांस्टेंट है तो उसको इधर भेज दीजिएगा डिनोमिनेटर में, और इंटीग्रेशन क्या होगा फिर इसका? इज इक्वल टू n dx इज इक्वल टू x raised to n plus 1 upon n plus 1। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? क्या ये आपको समझ में आ गया सबको? इज दैट ओके? हेलो? श्योर? तो इस तरह से अब पता है आपको 12th में जाने के बाद ऐसा एक टेबल बनाना पड़ेगा, d i1 i2 i3। अगर आपको चाहिए तो मैं दिखा सकता हूं, यहां पर 12th के जो बच्चे हैं देखिए, नाउ आई विल जस्ट टेल यू व्हाट इज द कनेक्शन ऑफ i1 एंड i2। देखो d और i1 का कनेक्शन मैंने आपको बता दिया है ना। थोड़ा सा मैं इसका साइज बढ़ा दूं, क्या आपको दिखाई देगा बेटर? या d by dx of x raised to n, n x raised to n minus 1, इसका इंटीग्रेशन आएगा x raised to n का इंटीग्रेशन x raised to n plus 1 upon n plus 1। d by dx of root x 1 upon 2 root x, 2 इधर चला जाएगा। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon root x dx? 2 root x। d by dx of 1 upon x is minus 1 upon x square। करेक्ट ना? अब ये माइनस साइन यहां से इधर चला जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon x square dx is minus 1 upon x। d by dx of x is 1, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx is x। ठीक है? d by dx of constant is 0, इसके लिए यहां पे कोई फॉर्मूला नहीं है। डेरिवेटिव ऑफ sin x is cos x, therefore इंटीग्रेशन ऑफ cos x is sin x। आई होप दिस इज क्लियर। i1 तो आपको समझ में आ ही गया। अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं व्हाट इज i2। i2 क्या है एक्सप्लेन करता हूं आपको मैं। यहां पर x को रिप्लेस करना है ax प्लस b से, और आइदर साइड जो भी कोई x है इसको रिप्लेस करना है ax प्लस b से, और राइट हैंड साइड जो है उसको 1 अपॉन a से मल्टीप्लाई करना है। व्हाट इज 1 अपॉन a? रेसिप्रोकल ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x। इज दैट क्लियर? लेट अस अप्लाई इट हियर, x के जगह पर ax प्लस b, सो इंटीग्रेशन ax प्लस b ब्रैकेट रेज टू n dx इज इक्वल टू, देखो dx को हाथ नहीं लगाना है, सिर्फ x को मैं बोल रहा हूं। ठीक है? x के जगह पर ax प्लस b and the RHS is pre-multiplied by multiplied by 1 upon a। Is this clear to all? समझ में आ गया? ठीक है? तो अब मुझे आप यहां पे what will be this, ये क्या बन जाएगा?
इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज 2 अपॉन ए स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी। समझ में आ गया? वैसे ही यहाँ पर 1 अपॉन इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स के जगह पर ए एक्स प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी, एक्स के जगह पर ए एक्स प्लस बी। अंडरस्टूड? यहाँ पर x है ही नहीं, इसके लिए यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ पर cos x के जगह पर ax प्लस बी, तो ये आएगा इंटीग्रल ऑफ cos ऑफ ax प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन a sin ऑफ ax प्लस बी। एनी डाउट्स अबाउट दिस? इज दिस क्लियर? एंड यू हैव टू डू दिस फॉर ऑल द फॉर्मूले दैट यू हैव कम अक्रॉस। आपको जितने सारे फॉर्मूले दिए हैं लाइक 1, 1a, 1b, 1c, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 फॉर्मूले दिए हैं। करेक्ट? You have been given 13 formulae, तो all those 13 formulae are to be written in this form। यहाँ पर आपको इसी फॉर्म में सारे के सारे फॉर्मूले लिखने हैं इस तरीके से। Is that clear to all? Any doubts about this? Very clear? Cosec, log, e raised to x, a raised to x। तो ये 11th, मैंने 11th बोला यहाँ पे, लेकिन तुम लोगों को 13 फॉर्मूले दिए हैं मैंने। e raised to x, a raised to x, समझ में आ गया? सारे फॉर्मूले आपको लिखने हैं। Would you mind writing that? और ये चलता जाता है वहां पे। Is that clear to all? So let's come back to 11th maths, sorry 11th physics। तो ये है वो टेबल। अरे टेबल इधर भी तैयार हो गया, क्या बात है, टेबल इधर भी तैयार हो गया बाबा, अपने आप तैयार हो गया इधर तो टेबल। लो कर लो बात, क्या करना है बताइए मुझे। Well, this is the table. d by dx of x raised to n, nx raised to n minus 1, this is d, this is I1, x raised to n dx, x raised to n plus 1, this is I2, ax plus b bracket raised to n dx 1 upon a, ax plus b bracket raised to n plus 1 upon n plus 1। Similarly for root x, similarly for x 1 upon x, sin x, log x, tan x, सब के लिए आपको लिखना है। Is that okay? ठीक है, देखिए यहाँ पे साइन हो गया, सेक स्क्वायर का हो गया, सेक स्क्वायर का क्या हो जाएगा, कैन यू टेल मी हियर? लेट्स राइट कपल ऑफ, एक लिखते हैं, चलिए क्या होगा, सब लोग बताइए। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर ऑफ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए tan ऑफ ए एक्स प्लस बी। एब्सोल्युटली करेक्ट। हर कोई मुझे एक एक फॉर्मूला बताएगा इसके आगे। चलो कौन बताएगा? हाँ बताओ। फिफ्थ नहीं, अभी और कोई बताओ ना, सिद्धांत। इंटीग्रेशन ऑफ सेक ऑफ ए एक्स प्लस बी, इधर दिख रहा है तुमको, उधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। tan ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए सेक ऑफ ए एक्स प्लस बी। बहुत डिफिकल्ट है? अच्छा, सिक्स्थ वाला फॉर्मूला मुझे यहां पर कौन बताएगा? I1 वाला कैटेगरी, इधर से इधर। इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ये माइनस साइन उधर जाने वाला है, पहले ही बता रहा हूं। तो दिस इज कोसेक एक्स, बोलो, इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स। एब्सोल्युटली करेक्ट। अब इसका मुझे ये वाला फॉर्मूला I2 वाला वर्जन बताइए, कौन बताएगा? कोसेक ax प्लस बी cot ऑफ ax प्लस बी इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन ए कोसेक ऑफ। एब्सोल्युटली करेक्ट। एनी डाउट सो फार? समझ में आया सबको ये? ठीक है। आगे का फॉर्मूला देखिए,
8th वाला 7th वाला मुझे सिर्फ आपको बताना है, आपको बताएंगे आप लोग। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, देन इधर क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर ऑफ डी एक्स, कोसेक स्क्वायर ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स, और इसका I2 क्या होगा? कैन यू कंप्लीट दिस टेबल एट होम? में आपको भेजा जाएगा, लेकिन आपके फॉर्मूला पेज पर या फॉर्मूला बुक में ये टेबल होना बेहद और बहुत जरूरी है। इज दैट क्लियर? क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दिया, 12th में भी इसकी जरूरत पड़ेगी, तो 11th में तो पड़ेगी ही पड़ेगी। 11, 12 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, अगर आप आगे मैथ्स पढ़ोगे तो उसके अंदर भी होगा। ओके, a रेस टू x के लिए a log a इधर आएगा, सो इट इज इंटीग्रेशन ऑफ a रेस टू x dx इज a रेस टू x अपॉन log a। अच्छा, यहां पर ऑलरेडी a है, so instead of ax plus b I will write here mx plus n, ax plus b की जगह पर mx plus n, तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ a रेस टू mx plus n dx इज इक्वल टू 1 अपॉन a की जगह पर आएगा 1 अपॉन m a रेस टू mx plus n अपॉन log a। अंडरस्टूड? क्लियर? ठीक है। सिमिलरली डी बाई डी एक्स ऑफ log x 1 अपॉन x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx log x, इसका I2 फॉर्म है। तो इस तरह से ये सारे फॉर्मूले यहाँ पर आपको मैं आज ही भेज दूंगा, मंडे के दिन आपको ये सारे फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। कल तो छुट्टी है, कल आप ये सब टेबल राइट करके रिवाइज करके आइएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल? आई स्टॉप हियर फॉर फिजिक्स, आई विल स्विच ओवर टू मैथ्स नाउ। ओके।